Okay students, let us find the integral of question number 4 of second part of exercise number 3.3 of mathematics 2. Here integral of under root of 5x square plus 3 is given. Okay, we have to integrate integral of under root of 5x square plus 3 dx. Students, we know that integral of under root of x square plus a square dx is equal to x by 2 under root of x square plus a square by 2, a square by 2 into log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c. Okay, this one is our result of integral of under root of x square plus a square, that is x by 2 into under root of x square plus a square by 2 log of x plus under root of x square plus a square, as we derived this result in last lecture. Okay, you have remembered. Please open the नोटबुक एंड रेफर दिस. ओके, आप इसको देखिए, इसको हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में. ओके, सो लेट अस फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दैट इज, लेट दिस वन इज I is equal to under root of 5x square plus 3 dx. ठीक है, अब आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए. We have x square plus a square. There are two terms. First term is x square. Second one is a square. X square plus a square. तो देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x square है कितना? The coefficient of x square is 1. मतलब जब x square का कोएफिशिएंट 1 रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी हम ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो अपना काम यहाँ पे क्या है? Our first step to make the coefficient of x square is 1. हमें अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पहले तो 1 बनाना पड़ेगा. तो बना देते हैं. कैसे बनाएंगे? दिस वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 को कॉमन निकाल लीजिए. टेकिंग 5 एज ए कॉमन वी गेट x स्क्वायर प्लस 3 by 5 और यहाँ पे क्या हुआ? dx. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. एंड वी नो दैट वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ a into b. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a into अंडर रूट ऑफ b. ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 into समथिंग था. आप इसे क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 5 into, you can write it as under root of 5 into under root of x square plus 3 by 5 dx. Okay, and under root of 5 क्या है? is a constant. वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. that is under root of 5 we have under root of x square plus 3 by 5 dx. अब देखिए जो आपका सेकंड टर्म है वो कांस्टेंट है, बट वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है. That is in the form of perfect square. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to change the second term. That is क्या है वो? 3 by 5 है. We can write it as 3 by 5 to the whole square dx. Any problem? भाई जो second term है वो perfect square होना चाहिए. तो 3 by 5 can be written as under root of 3 upon 5 to the whole square. अब देखो x square plus a square. Without this is equal to, means I is equal to under root of 5 और क्या बच गया? That is x square plus under root of 3 upon under root of 5 to the whole square dx. Okay, अब आप अप्लाई कर सकते हो.
क्या अप्लाई कर सकते हो? आवर न्यू टाइप ऑफ इंटीग्रल दैट इज x by 2. तो अंडर रूट ऑफ 5x by 2 दैट इज x by 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 by 5 to the whole square plus a square by 2. a square means 3 by 5. भाई a means under root 3 by 5. a square के प्लेस पे यहाँ पे क्या है? That is a square. a means under root 3 by 5. तो a square is 3 by 5. 3 by 5 by 2 into log of mod of x. x means x plus under root of x square plus a square, that is x square plus under root of 3 by 5 to the whole square plus c. Okay, read out. चलो आगे बढ़ते हैं. That is under root of 5 x by 2 under root of x square plus 3 by 5. फिर से आप उसी फॉर्म में प्रेजेंट कर दीजिए. That is root 3 by 5 means तो उसका स्क्वायर है तो 3 by 5 प्लस 3 by 5 to the 10. 3 by 10 into log of mod of x plus under root of x square plus 3 by 5 plus c. अब अगर आप चाहो तो using your answer in your textbook you can matching that after simplification. After simplification, that is x square upon 1 cross multiplication and यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? log of m by n. ओके, so please match your answer with your textbook. So this is your final answer. That is so easy. Okay, so students please copy that. कॉपी कीजिए. Okay students, our next question is question number 5th, that is integral of x square under root of a square minus x to the power 6. The second term is x to the power 6. Okay, and here x square multiplier is x square means we have to change exactly in the form of integral of under root of a square minus x square dx. ये अपना फॉर्मेट है, इंटीग्रल का ये फॉर्मेट है. बट यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर x पावर 6 है और x स्क्वायर एक एक्स्ट्रा टर्म है. यहाँ तो ऐसा कुछ तो है नहीं. अपना जो फॉर्मेट है इंटीग्रल का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसके अंदर दो देयर आर टू टर्म्स. यहाँ दो टर्म्स तो है बट इसका पावर डिफरेंट है. इस पावर 6 से हमें क्या चाहिए? हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. परफेक्ट मींस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसा चाहिए. और इसके अगल बगल देयर शुड बी नो एनी टर्म्स. इसके अगल बगल कुछ भी नहीं चाहिए बट यहाँ पर है. मींस वी हैव टू रिमूव x स्क्वायर एंड डिक्रीज or change x power 6 in the form of perfect square, that is square form, that is x square chahiye. Okay, and we know that the form of this is x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse of x upon a plus c. यह उसका रिजल्ट है. ओके, तो हमें क्या करना है? हमें इस फॉर्म में लाना है. we have to make the format as like this. तो कैसे होगा? देखिए, पहला काम क्या है? इसको स्क्वायर में चेंज करना है. x पावर 6 in the form of square. कैसे होता है? we know that x पावर 6 can be written as x cube to the whole square. फिर पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 3 2 जा 6. तो x power 6 can be written as x power 3 to the power 2. Okay, means इसे आप क्या लिख सकते हो? We can write it as a square minus x cube to the whole square dx. ठीक है, तो
स्क्वायर तो बन गया, बट अभी हमें क्या करना है, इसको भी रिमूव करना है, इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना है, यूजिंग आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता है कि यह यहाँ से हट जाए। ओके, तो हमें क्या करना है भाई कि एक्स क्यूब को टी एज्यूम कर लो, एंड वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो मींस एक्स क्यूब है क्या कहीं पे, बिल्कुल है, एक्स क्यूब अपने पास है, तो उसी को आप टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स वी गेट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। हमें 3 तो नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। मीन्स यहां से इतना, ये देखो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt एंड x क्यूब इज इक्वल टू t। ओके, तो दिस वन इज योर सब्स्टिट्यूशन and this is equal to under root of a square minus t square और x square dx is 1/3 dt. This is equal to 1/3 under root of a square minus t square और ये रहा है आपका dt। अब बताओ, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? अब तो पूरा का पूरा सेम मैचिंग कर रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एक्स टी dt, टी का फंक्शन हो गया, ठीक है। नाउ वी कैन यूज दिस थ्योरम, दैट इज वी हैव क्या कर रहा है 1/3 i इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। अब अप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1/3 x/2 दैट इज t/2। वो x का फंक्शन था, t का फंक्शन है, तो x/2 यहाँ पे t/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस t स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या साइन इनवर्स ऑफ t/a प्लस c। दिस वन इज इक्वल टू 1/3। करेक्ट ना, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। तो t मतलब क्या, t का मतलब है x क्यूब, t इज x क्यूब बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x क्यूब टू द पावर 2। t को आपने x क्यूब से रिप्लेस किया प्लस t स्क्वायर t मींस x क्यूब टू द पावर 2 अपॉन 2 इंटू t स्क्वायर x by 2 a square by 2, that is a square by 2. Okay, a square x by 2 means t by 2 plus under root of a square minus x square plus a square by 2 a square by 2। सॉरी, यहाँ पे आप a square by 2 लिखिए, बता नहीं रहे हो, प्लीज सी केयरफुली, आप भी थोड़ा हेल्प करो। तो a square by 2 sin inverse of t means t, that is t means x cube upon a plus c। okay, plus c 1/3 t means x cube by 2 under root of a square plus x cube to the whole square plus a square by 2 t by a, t means x cube, and this one is equal to 1/3, so 3 2 is 6 और x क्यूब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x पावर 6 प्लस 1/3 इंटू 2 दैट इज a स्क्वायर अपॉन 6 साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब अपॉन a प्लस c। ओके, सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ, sorry, second part of 3.3. Please make a note.